الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ طٰہٰ جو 30ویں سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب میں اور 16ویں پارے میں موجود ہے. اس کے دوسری رکوع کی 43 تا 54 12 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: جاؤ تم دونوں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے.
رمضان سے پہلے اسی سورہ کا درس شروع ہوا تھا اور گزشتہ ہفتے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی ان میں سے 2 آیات کو میں نے جوڑ لیا ہے، کیونکہ بات یہاں سے آج اگر درس کی شروع ہوتی قالا ربنا اننا نخاف، یہیں سے یا اذهبا الى فرعون انه طغى، تو بات پتہ نہیں چلتی کس کی کہی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے ان 2 آیات کو ذکر کر دیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سے مخاطب ہو کر پھر یہ کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب انہی سے خطاب ہے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اس کے بعد ان دونوں سے خطاب ہو گیا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب مصر میں آ گئے ہیں۔ وہ پہلی آیات جو تھیں وہ پہلی وحی کے کا ہی حصہ تھیں، جس میں اللہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی خطاب کیا تھا۔ اذهب انت واخوک سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ وہی بات ہو رہی ہے یعنی آپ کے کوہ طور پر یا مصر میں ہو رہی ہے، لیکن اذهبا الى فرعون انه طغى سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ مصر میں ہی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے اور دونوں کو حکم دے رہا ہے۔ گویا جب وہ وہاں سے آ گئے، مصر پہنچے اور وہاں پر جا کر کے اللہ رب کریم نے ایک وحی کی، میں اس کو جوائنٹ وحی کہہ سکتا ہوں، ایک الگ وحی، دونوں کو الگ الگ وحی کی کہہ سکتا ہوں، اور اس میں دونوں کو حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى۔ اور پھر دوسری بات یہ آ چکی ہے گزشتہ درس میں کہ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، تو ان سے یہ کہا کہ نرمی سے بات کرنا، یہ بات آ چکی ہے۔ وہاں کے بعد قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، قالا تثنیہ کا صیغہ ہے، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ اچانک ہم جیسے پہنچیں گے تو ہم پر پھر پڑے گا، یہ زیادتی کرے گا، یعنی ہماری بات ہی نہیں سنے گا، یا تو بات سنے گا تو بھی ایک دم ناراض ہو کر کے ہم پر سرکشی کرے گا۔ پہلے مطلب بات نہیں سنے گا، ہم سے بدتمیزی کرے گا، اور دوسرے یہ پھر سرکشی کرے گا۔ اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، سوچیے ذرا، وہ جو جبار بادشاہ ہے اس کے سامنے اس قوم کے 2 فرد جا رہے ہیں، جو غلام ہے اس کے بگاری کرتی ہے قوم، جو جس قوم کے بچوں کو جو ہے، لڑکوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑتا، بچیوں کو جو ہے غلام بنا لیتا ہے اور ان پر جتنی اذیت کر سکتا ہے ٹارچر کرتا ہے، وہ سب ٹارچر کرتا ہے، بےگار لیتا ہے ان سے۔ اس کے 2 افراد آئیں اور یہ کہنے لگے جیسا یہ کہ وہ جا کر کوئی بات نہیں کہیں گے، تو سوچئے ہمت اور وہ جرأت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آدمی کوئی جا کے ایسے کہہ دے گا۔ وہ تو بہت بڑا جابر بادشاہ تھا۔ تو ان دونوں نے جو بات کہی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا اور ان یطغى، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب اس پر رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ مجھے اس پر ایک دم وہی بات یاد آ گئی پھر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصائے موسیٰ دیا تھا، وہ پھر میں بار بار میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ عصا تھا کہ چھوڑ دو اس کو، وہ سانپ بن گیا اچانک، اور سانپ ایسا ویسا نہیں تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ بھاگے وہ ایک دم۔ وہاں بھی خوف کی بات ہے کہ مت لا تخف، مت ڈرو،
वहाँ भी खौफ की बात आ रही है, और यहाँ पर खौफ फिरौन के सामने की बात आ रही है। तो दोनों में समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ भी अल्लाह ताला ये कहता है कि मत डरो मूसा और पकड़ लो अपने हाथों में। तो मैंने कई बार बताया, और रमज़ान में खास तौर से बताया था मैंने आपके सामने ये बात। अभी क्या थे वो, अभी क्या हो गए। नबी के ईमान को हम समझ नहीं पाएंगे। नबी के ईमान को यूँ समझिए कि वो सांप के हाथ में अल्लाह ताला कह रहा है कि हाथ पकड़ लो इसको, तो वो एकदम पकड़ लेते हैं उसको। ये ईमान नबी होता है। ये है वो चीज़, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर वो वैसे ही हुआ, फिर वो लकड़ी बन गई। अब यहाँ फिरौन है, वहाँ एक सांप था, यहाँ फिरौन है। अब देखिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और सर्कस से जब्बार है बादशाह, और यहाँ क्या बेचारे आप देखिए ना, मैंने कहा कि बिल्कुल गुलाम कौम है, बेगार उनसे ली जा रही है। उनके सामने ये दो लोग जाते हैं, बिल्कुल तन्हा जा रहे हैं बगैर किसी उसके, और जाकर के उनसे कहा जा रहा है ये कहो, क्या कहो। तो पहली बात कहने की बात बताता हूँ, इन्ना रसूला रब्बी फारसिल माना बनी इसराइल। बहुत बड़ी बात है अल्फाजी। जाके ये कहो कि हम तेरे रब के कासिद हैं, पैगाम्बर हैं, हमको हमारे साथ बनी इसराइल को कर दे तू। सोच रहे हैं आप, सोची कभी बात आपने, ये जो कौम उसकी गुलाम थी, जो जिसके बगैर उसकी इकोनॉमी बिगड़ जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता उसका, जो बेगार ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसके बगैर सब बिगड़ जाता, उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता। इस पर वो हुक्मरानी कर रहा था, वो हुक्मरानी नहीं रहती। किप्ती तो उसके साथ की कौन थी, हुक्मरान वैसे बादशाह था, लेकिन असली हुक्मरानी तो सिप्तियों पर, इन्हीं पर थी ना, बनी इसराइल पर थी ना हुक्मरानी, गुलामी जिनसे करा रहा था वो। तो उनके सामने ही कहा ऐसा कहो जाके। हाँ, तो इससे पहले अल्लाह ताला ने जो कहा दरमियान की आयत, वो है बात कि मत डरो, ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा, मैं तुम्हारे, तुम दोनों के साथ हूँ। इन्ननी, मैं, इन्ननी में भी जोर होता है, बहुत जोर है कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, और सुनता हूँ तुम दोनों की, और देखता हूँ हर उस चीज़ को जो कुछ भी होने वाला है। यानी मुझे सब कुछ इल्म है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ये कहा था मत डरो मूसा, हैं। यहाँ इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बात की ज़रूरत थी, वहाँ एक्स्ट्रा बात कही, क्योंकि मामला दूसरा था। अब उस पर सोचिए, ये कुरान पाक है कि जो ये कहता है कि वो चले गए। एक बाइबिल है जो कहती है कि वो 7 दिन तक आपस में उनके यही रद्दोकद रही है। एक इन्हें बाइबिल में तो ये है कि वो तैयारी नहीं हुए, कहते रहे, वो कहते रहे कि नहीं मैं नबी नहीं बनता, मैं नहीं बनूंगा। और तलमूद भी ये कहते हैं 7 दिन तक रद्द, यानी उनके सामने दरमियान में यही होता रहा, झगड़ा होता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला नाराज़ हो गया, और नाराज़ होकर के उसने जो है मूसा अलैहिस्सलाम कि भाई हारून को कहानत का प्रीस्टहुड बड़ा दर्जा उनकी औलाद को दे दिया। समझ रहे, ये है बाइबिल। बताइए यहाँ और उसमें फर्क। बात वही है कि वो गए हैं, जो वो बाइबिल भी कहती है, ये तारीख भी कहती है, दुनिया की तारीख भी बोल रही है, बाइबिल भी कहती है। इन कुरान जो कहता है वो बिल्कुल वही लगता है कि ऐन जैसी बात होगी। वो गए होंगे, जाहिर है। अगर वो इतने घबराए हुए होते तो वहाँ जा कर के बोल सकते थे भला? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये है, मैं कहता हूँ रसूल के ईमान की बात ही कुछ और होती है, लेकिन हाँ उसका एक ज़र्रा, छोटा सा हफ़ीज़ ज़र्रा मोमिनों को भी मिल जाता है। तो मोमिन को मिलता है तो वो भी उसके अंदर की वो जुर्रत ईमानी पैदा हो जाती है, जुर्रत ईमानी उससे पैदा होती है। ये है असली चीज़। तो ईमान की बड़ी क़ुव्वतें होती हैं। वैसे क़ुव्वत इसका हम तसव्वुर हम ही कर सकते हैं, जो जिसके पास ज़र्रा ईमान का मिले। दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते कि आज क्या हो रहा है। जैसे आज ग़ज़ा में जो कुछ हो रहा है समझ में नहीं आता लोगों के, ये कैसे करना है। ये लोग 6 महीने से बाबू के पास कुछ नहीं है, और जिस तरीके से जमे हुए हैं वो, तो ये जुर्रत ईमानी।
हाँ, तो अब उन्होंने एक ही आयत में कहो, जो कुरान का ईजाज है, यानी बहुत ही कॉम्पैक्ट टर्म में बात कहता है कुरान। कॉम्पैक्ट टर्म में एक ही आयत में 5 बातें रब्बे करीम ने कह दी। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक, तो तुम जाओ और दोनों कहो कि हम तेरे रब के रसूल हैं। रसूल हैं, रसूल को अगर वैसे कहेंगे तो ज़रा समझ बात नहीं आएगा। मैंने इसको कासिद में जब बोला तो समझ में आ जाएगा कि हम एक कासिद हैं, मैसेंजर हैं, कोई मैसेज लेके आए हैं, वो मैसेज आगे आएगा। मैसेज वो आगे आएगा, वो क्या होगा कि फ़अरसिल माना बनी इसराइल, ये मैसेज है, हमारे साथ बनी इसराइल को कर दो। अब ये सवाल है कि सबसे पहले बात उन्होंने कही एकदम अचानक, वो उसके लिए तैयार भी नहीं होता, शायद कोई भी नहीं होगा, ये क्या कह रहे हो, क्या मतलब इसका। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ है, कुछ खिचड़ी पक रही होगी, क्योंकि उसने ये निकाह तुम कैसी बातें करने लगे आके अचानक। ये कहीं नहीं आता है, कुरान में कहीं नहीं आता कि तुम कैसी बातें कर रहे हो कि बनी इसराइल को हमारे साथ कर दो। कहाँ कर दो, क्या कर दो, कुरान में कहीं भी नहीं आई। तो फिर आखिर क्या बात थी। तो मुझे इस पर अभी जब मैं तफसीर पढ़ रहा था तो तफसीर माजिदी के बाद अच्छी लगी। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके दरमियान में एक मुतालिबा जड़ पकड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ये मुतालिबा कर रही थी अपने मालिकान से, और फ़िरौन तक बात जाती होगी, वैसे नहीं, बात वैसे नहीं जा रही थी। वो बेचारे उनके आका बहुत सौ के थे, बहुत गुलामी थे ना, वो तो गुलाम थे, तो बहुत जैसे ज़मींदारों के गुलाम होते हैं तो ऐसे ही थे। तो उनके आका थे अपने, यहाँ तक आपको मालूम होगा ना कि जब वो बाहर निकले हैं तो जेवरात लेके निकले थे उनके, तो उन्होंने उनके आकाओं ने कुछ उनको दे दिया था कि ठीक है जाओ, तुम जा रहे हो चले जाओ। तो अंदरून से एक तहरीक उठ रही थी, एक मुतालिबा उठ रहा था कि हमारा वतन जो है, हमें वतन जाने दो, आप हमें वतन जाने दो, हमें वतन जाने दो, कनान आबाई वतन, जहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र गए हैं, याद रखिए वही कनान। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले बनी इसराइल है ना, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ही तो हैं वो, और वो जो गए हैं उन्हीं का वही वतन, आबाई वतन, वहाँ जाने की बात है। समझ में आती है बात। वो बार बार कहते होंगे हमें हमारे वतन जाने दो, हमें हमारे वतन जाने दो, हमें वतन जाने दो। तो उनके आका कहते होंगे अच्छा ठीक है, अच्छा हम कहेंगे कि अच्छा ज़रा सा बादशाह से कहलवा दो बात हमारी, बादशाह तक पहुँचा दो बात हमारी। वो कहते रहते होंगे और ये सालों गुजर गए होंगे ऐसे कहते कहते कहते, ऐसा लगता है। अच्छा अमीन साहब यूँ कहते हैं इस पर कि वो इबादत के लिए 3 दिन की मसाफत का बात तो अच्छी सी लगती है, लेकिन मुझे इस वक्त नहीं जमी यहाँ पर वो बात नहीं, इसलिए नहीं जमी बताता हूँ क्योंकि पहले ही से अल्लाह ताला कह रहा तुम जाओ और ये कहो जाकर। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने को नबी बनाया तो उसके दरमियान में तरबियत का मौका यहाँ है ही नहीं। उसकी कौम की तरबियत होती, इतनी तरबियत हो गई होती, 10-15 साल सब लोग ईमान ले आए होते, है नहीं, तो तब तो समझ में आ रही बात। ये ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले ही से कह दिया तुम जाओ ये काम करो, ऐसा यहाँ इन आयतों से लगता नहीं। या तो ये बात कही जाती है कि बहुत दिनों बाद तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो कहते रहे 10-15 साल बाद अमीन साहब वाली बात जमेगी कि हाँ कि ये बनी इसराइल इबादत के लिए जाना चाहती है, कुर्बानी करना चाहती है, वो 3 दिन के मसाफत पर जाकर के कुर्बानी करेगी। समझ में आ रही बात, फिर तो लगती है। बाद में ये मुतालबा हो गया हो तो समझ में आ रहा है मेरे लिए, लेकिन शुरू में ये मुतालबा समझ नहीं आता कि इबादत के लिए कह रहा हूँ। बल्कि बात यही होगी जो मौलाना अब्दुल बादी दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि वो अंदरून से उनका एक तहरीक उठ रही थी कि हमें हमारे वतन जाने दो, भाई हमें जाने दो, अब हमें बस जाने दो। दिल पिघल गए होंगे कुछ उनके आकाओं के, कुछ लोगों के, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा ठीक है ऐसे ही होगा, हम बादशाह तक बात पहुंचा देंगे और बादशाह के कानों तक बात पहुंच गई होगी, ऐसी बात लग रही है मुझे। और ये जब पहुंचे हैं ये दोनों लोग, तो इन्होंने जब कहा तो कुछ बोला नहीं, पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये इससे लगता है कि उसके कानों में बात पहुंच रही है, ये मुतालबा बनी इसराइल का उठ रहा है और बड़ी खामोशी से और मोहब्बत से उठ रहा है।
गुस्से में नहीं उठ रहा है, बल्कि मोहब्बत से उठ रहा है। ये नहीं कह रहे हैं हम उठ जाएंगे, हम यूँ करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हमें जाने दो, हमें हमारे वतन जाने दो, हमें इस तरीके की बात हो रही। हाँ, उसके साथ में एक बात और कही, ये है वला तुअज़्ज़िबहुम, भाई टॉर्चर मत करो इनको। ये एक तरह जोरदार बात है, ये एक बात है जो उन्होंने जुरत रिंदाना और जुरत ईमानी के साथ कही, लेकिन इन पर जुल्म मत करो। ये एक बात है जो पक्की बात लग रही है इसके अंदर। तो पहली बात है हमारे साथ में बनी इसराइल को कर दो, इन पर जुल्म मत करो। पहली बात, सबसे पहले मैंने कहा 5 बातें हैं। पहली बात ये, हम आपके तेरे रब के कासिद हैं। दूसरी बात कही कि हमें बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। और तीसरी बात कही क़द जि'नाका बिआयतिन मिन रब्बिक, हम कुछ आयतें निशानियां लेकर आए हैं तेरे रब की, है ना। फिर एक बात कही, आखिरी बात, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती उस पर है जो हिदायत की पैरवी करेगा। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत नरमी से, और जो बात कही थी वो उन्होंने इस अंदाज से कह दिया। बात भी कह दी पूरी जोरदार अंदाज में कि हिदायत जो हासिल करेगा उसको सलामती मिलेगी अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से उसी के सलाम। अब इनको कितनी बार रब कहा अल्लाह ताला ने? एक ही आयत में 2 बार कहा, देखा आपने। पहले कहा इन्ना रसूला रब्बिक, दोबारा कहा क़द जि'नाका बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अभी दोबारा जब रब कहा, उससे पहले एक बात मूसा अलैहिस्सलाम ने और कह दी कि इन्ना क़द ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। ये इज़ाफ़ी बात है, उसी की तौज़ीह है जो कही गई ऊपर, कि हमको एक और वही भी की गई है कि देखो जो हमको झुटलाएगा या हक को झुटलाएगा और इराज़ करेगा तो उसके लिए अल्लाह का अज़ाब मुक़द्दर है। मगर इस अंदाज़ से नहीं कहा तेरे लिए अज़ाब मुक़द्दर है। ये है इसके अंदर दावत का एक पहलू। इसमें कोई बात ऐसे एक्टिव वॉइस में नहीं कह रहा है, कोई सब पैसिव वॉइस में बात हो रही है। अगर ऐसा कह देते तो तेरे लिए अज़ाब है, अच्छा पहले तो मैं तुम्हें देखूंगा, ये चिड़ पैदा होती है। चिड़ वाली कोई अंदाज नहीं, इसका दावत पूरा का पूरी दावत है इसके अंदर। अब देखिए क्योंकि रब की बात की थी तो उसने फौरन सवाल जड़ दिया, काला फमर रब्बुकुमा या मूसा। तो जिस रब की तुम बार बार कह जा रहे हो बात है कि हम रब के कासिद हैं, और जो तुम कह रहे हो कि हम निशानियाँ लेके आए हैं रब की तरफ से, तो पहले बताओ तुम्हारा रब है कौन? क्यों? क्योंकि वो खुद अपने को रब कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ सबसे बड़ा रब। उसने बार बार कहा है, कुरान में कई बार जिक्र है उसका, सबसे बड़ा अपने को रब कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब तो मैं हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुदा अपने को समझता था। वो खुदा जो कायनात का खालिक और मालिक है वो खुदा नहीं समझता था, इसमें दो राय नहीं। वो भी खुद पूजा करता था, वो खुद सूरज देवता का अपने को अवतार कहता था, लेकिन सियासी माने में, पॉलिटिकल सिस्टम में वो कहता था मेरी चलेगी, मेरी चलनी चाहिए। बस सही समझे आपकी बात। आज भी यही हो रहा है, सेक्युलरिज्म में भी यही होता है। मज़हब के मैदान में जो जिसको चाहो पूजो, वो खुद ही पूछता था किसी को, मगर हुक्मरानी में, हुकूमत में, सियासत में मैं हूँ, मेरी चलेगी। उसमें खुदाई होती है, वो होती खुदाई है, चलती उसी की है। जो खुदा का रोल है वो खुद ले लेता है इंसान, इसमें दो राय नहीं है। खुदा का रोल वो खुद लेता है, वो अपने को खुदा होने का ही दावा करता होता है, चाहे वो कहे या ना कहे, चाहे किसी और की प्रसिद्ध कर रहा हो, चाहे किसी और को पूज रहा हो, लेकिन वो खुद अपनों को पुजवाता होता है हर जगह। कहीं तो बिल्कुल क्रूडली पुजवाने लगे हैं और पुजवाने लगते हैं लोग। हाँ, इसमें या मूसा की पर भी बड़ी प्यारी सी बहस मुफस्सिरीन ने कर दी कि थे तो दोनों लोग वो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब क्यों किया? तो मुफस्सिरीन ने बड़े प्यारे अंदाज से, लतीफ़ अंदाज में एक बात कही है कि मालूम है कि वो खूब जानता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा ज़बान की फसाहत में कमज़ोर हैं, और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में वो खूब जानता था कि बहुत फसीह हैं, अच्छी तकरीर करते हैं बहुत प्यारी सी अंदाज में। तो मैं उनसे, जो कमज़ोर आदमी, उससे पूछूंगा, जवाब ठीक नहीं दे पाएंगे या कुछ
लुकत आएगी, लड़खड़ाहट आएगी, बात आएगी तो मैं हंस दूंगा इस पर, मजाक उड़ा दूंगा इस पर। रब्बे करीम ने इसको, इस मौके को देने नहीं दिया। लेकिन दूसरी बात एक और मुझे जो अच्छी लगी वो ये है, इन दोनों में बड़े जो थे बुजुर्ग वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अगर खिताब किया तो करना भी चाहिए था, चाहे उसने गलत किया या जैसे भी किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ही असली रसूल थे। रसूल इनमें से मूसा अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। नबी और रसूल में फ़र्क होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल और नबी दोनों हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी हैं, उनके साथ में है वज़ीर की हैसियत से, समझे ना? तो बात मूसा अलैहिस्सलाम से ही करनी चाहिए थी इस लिहाज से। चलिए खैर बहरहाल, तो उन्होंने जवाब जो दिया है साहब, ये भी दावत का एक बेहतरीन हमें उसूल सिखाती है आयत, ये हिस्सा में क़ाल रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। उनका मेरा रब वो है, रब्बुना हमारा रब वो है, अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु, जिसने हर चीज़ को उसकी साख्त, मौजू तरीन साख्त बख्शी, फिर उसको रास्ता बताया। वो रास्ता जिबिल्ली रास्ते की तरफ इशारा हो रहा है। हर चीज़ को जिबिल्लत में, उसके नेचर में एक गाइडेंस है। जैसे मछली का बच्चा तैरना जानता है, ये जिबिल्ली तौर पर जानता है। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलते के साथ ही दौड़ना शुरू कर देता है, कहानी की तरफ। परिंदा कुछ दिनों बाद उड़ना शुरू कर देता है। अरे वो तो छोड़िए, बच्चा माँ का दूध कहाँ से जानता है सकलिंग करना? वो कहाँ सीख लेता है? सकलिंग कहते हैं हम लोग, ये कहाँ से सीख लेते हैं? सिर्फ रब ने सिखाया उसको। ये है वो जिबिल्ली चीज के पास कि वो माँ की छाती के करीब जब जाता है तो वो सकल करना शुरू कर देता है, दूध पीना शुरू कर देता है। ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई? ये है वो जिबिल्ली हिदायत। फिर बेहतरीन उसकी साख बनाई, जो जिसको जैसी एहतियात की ज़रूरत थी, मौजू तरीन उसकी साख थी। बड़ी प्यारी सी बात हमारे मुफस्सिरीन कह रहे हैं, मौलाना मौदूदी कह रहे हैं इस पर, कि आपके लिए आपकी साख को बेहतरीन साख बनाया। कान के लिए कान, मतलब जो चीज़ जिस जगह है, हाथ पैर अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसी बनाए जैसी उसकी ज़रूरत को पूरा करते हो। जो ज़रूरत थी उसकी हार्ट को हार्ट जैसा बनाया। हार्ट का काम जो था, जो करना था उसको उसके लिए बेहतरीन साख। डॉक्टर साहब जानते हैं, जो भी डॉक्टर होंगे, कि हार्ट क्या कहें, बैठ कर के आदमी सोचता रहे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका शेप है, जो उसके 3 कंपार्टमेंट हैं, जिस तरीके से पंख होता है, बेहतरीन साख्त है। सिर्फ एक ही कह रहा हूँ, सिर्फ हार्ट। हर चीज़ हमारी नहीं बल्कि कायनात की हर चीज़ उसी तरीके की है जैसी इसको ऐसी होनी चाहिए थी। वो हर चीज़ ऐसी है, बेहतरीन वैसी है। बल्कि उन्होंने तो ये कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि हदा के बारे में कहा कि ज़मीन को ये हिदायत की कि तू नबातात को कैसे उगाएगी। वो तो लाशऊर है, वो कोई शऊरी चीज़ नहीं है, ज़बीलुकुल में से नहीं है। पेड़ पौधों को फल और फूल पैदा करने के लिए उसकी जिबिल्ली हिदायत करती। तो हर एक को उसकी जो चीज़ का काम है, जो मकसद वजूद है, उसके लिए उसको बेहतरीन अंदाज से बना दिया। मेरा रब वो है, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मेरा रब वो है जो बेहतरीन साख में बना कर उसको बेहतरीन हिदायत दे दी। अब तू बता, तू अपने को कहता है कि तूने क्या किया है, ये कहना है। लेकिन ऐसे नहीं कहा, अगर ऐसे कहते नाराज हो जाता वो, मगर मेरा रब वो है। अब उस पर तो बोल नहीं सकता था, वो तो बोल ही नहीं पाया। उसने डाइवर्ट कर दिया फौरन, और डाइवर्ट करना ही था उसको, क्योंकि वो तो आप जानते ही, उसको तो मानना नहीं है तासुब में, तो लिहाजा वो तासुब वाली बात की तरफ जाएगा वहाँ पर, और ये कहेगा कि इसको, यानी कोई बात को ऐसे मोल्ड करूँ मैं जिससे मेरी जो कौम है, दरबारी हैं, सब लोग जो हैं मेरी बात में हाँ मिला करके मेरे फेवर में आ जाएं। वो ये कच्चा बताओ, काल फमा बाजुल कुरून ऊला, जो हमारे बड़े बूढ़े जो थे बाप दादा, उन्होंने तो उस रब को पूजा नहीं, मतलब कहने के लिए उस रब को तो पूजा नहीं। उनका क्या हाल है, उनके बारे में क्या फैसला आपका? वो तो मान नहीं रहे थे ऐसे जैसे तुम कह रहे हो। तो अब तो वो तो जहन्नम में गए होंगे।
تو کہہ رہے ہیں ہمارے مولانا مودودی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ کہے کہ ہاں جہنم میں جل رہے ہیں، مگر نہیں، دعوت کے خلاف ہے مزاج کے۔ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ قال علمھا عند ربی فی کتاب، کیا بات کہی ہے، غور کیجیے۔ اس میں بھی بہترین درس ہے ہمارے لیے کہ دعوت میں کوئی ڈائیورٹ کرے گا ہمیں، ہم جو ہے اس کو اس انداز سے اس کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ کوئی ایسی بات نکالے جس سے سب لوگ جو ہے ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ بہت پیارے انداز میں یہ کہا کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے، اس نے کتاب میں سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ کون کیا تھا، کیسے عمل کیے اس نے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھٹکتا ہے، نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جو کچھ کیا ہے انہوں نے پورا ریکارڈ ہے۔ اب وہ ریکارڈ ایک دن جو ہے اس کے اندر چپکے سے آخرت کے عقیدے کو بھی یعنی اشارہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہاں تک پوری بات کیوں تو ہو گئی؟ دیکھیے رسولہ ربی کہہ کے رسول کی طرف بھی بات آ گئی، میرا رب ہے اکیلا، سب وہ آقا مالک حاکم رازق خالق سب کچھ وہ اکیلا ہے، صرف اسی کی پوجا ہونی چاہیے، الہ بھی ہے، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، تینوں باتیں آ گئی۔ اب اس کے بعد یہ تضمین ہے، تشریح ہے، توضیح ہے اوپر کی آیات کی کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ یہ بالکل ایک ایکسٹرا اسی تشریح ہے جو بات اوپر کہی گئی تھی۔ اب اس کو ڈھونڈ لیں، ہم وقت زیادہ ہوگا لیکن اس میں کچھ اشارتاً میں کچھ باتیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے ربوبیت کے بارے میں جو بات کہی تھی اس ربوبیت کی تفصیل کر دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ ربوبیت ہی کی کہ رب ہونے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر رب ہے تو تیرے اندر یہ صفت ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں کہا لیکن مطلب یہی کہنے کا۔ تو میرا رب تو یہ ہے کہ وہ رب جو ہے ایسا ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، اس پوری زمین کو گہوارہ بنا دیا، بچھونا بنا دیا، مہدن، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس کے اندر راستے بنا دیے چلنے پھرنے کے لیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسا دیا اس نے، وہ برساتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ الذی کلو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلو کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کے چارے کے لیے انتظام کرو، جانوروں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس پر سمجھ جائیں گے بات صحیح ہے کہ کون ہونا چاہیے رب، اور رب کی صفات کے لیے کیا خصوصیات ضروری ہیں۔ اب تو خود سوچ لے کہ تو ہے کہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے ایسا، بلکہ تو خود سوچ لے کہ تیرے اندر کوئی صفت ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کے جو اندر جو اعجاز ہے، اعجاز عین سے ذات میں، اور ایجاز ہے یعنی جامع کمپیکٹنیس، اس کو سمجھیں ہم، اور اپنی بات میں بھی ہم بھی کمپیکٹنیس رکھتے ہوئے بات پہنچا دیں، اور لوگوں کو بھٹک رہے لوگ بھٹکانا چاہیں گے تو ہم نہ بھٹکیں ان سے، اور اپنی بات پر فوکس رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔